I, on behalf of IMT Group of Colleges, would like to welcome all our respected guests in today's event, Evolution Expo 2022. We always try to give a platform where students can perform, exhibit their whatever the models they have made. This is a platform where they get an opportunity to show their talent. I always believe that beside theoretical knowledge, such kind of practical exposures are equally important. This platform gives young minds some thoughts to innovate. Of course, they may be at a primitive stage. Most of us might not see the light of the day. But the importance of such event is that a feeling is inculcated in the minds of young people that innovation has to be there, and we all appreciate humanity has progress only through innovation. Students are very creative here, and even to the college students I have seen that they have still been able to maintain that creativity. Now it is up to the professors to maintain that the creativity and the innocence as they grow, because that is what is required, as they move up the ladder. डीएवी पब्लिक स्कूल जसोला बिहार का एक बायो स्टूडेंट हूँ। तो हम लोगों ने बायो में फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक एप्लीकेशन मॉडल सर्च किया है। तो ये एप्लीकेशन मॉडल एक गार्बेज क्लीनिंग रोबोट है। इससे आप एक रिवर बॉडीज़ या फिर वाटर बॉडीज़ हो, उनका गार्बेज आप क्लीन कर सकते हैं। आई एम मानव, आई एम फ्रॉम ईश्वर चंद इंटर कॉलेज। मैंने ये हाइड्रोलिक ट्रैक बनाया है जो लिक्विड प्रेशर के ऊपर काम करता है और जिसकी मदद से हम कार्स को 3rd से 4th फ्लोर तक पार्क कर सकते हैं। During rainy season, this road will absorb the water and increase the groundwater level. And this groundwater we use to generate the hydroelectricity, which help us to glow street light. IMT में बहुत अच्छा लगा और सारे स्टॉल्स बहुत ही बढ़िया है और खाना भी बहुत बढ़िया था। आपका नाम क्या है? रिया नाम है मेरा, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ आके हम अपने स्कूल को नहीं भूल पाए, पूरी स्कूल वाली फीलिंग आती है यहाँ। अपनी बढ़िया मजे लिए, एंजॉय। बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत हरियाली है, अपनी सब बढ़िया टीचर हैं। यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के टीचर सारे कोऑपरेट कर रहे हैं और ये फंक्शन जो एग्जीबिशन लगी है बहुत अच्छी है। IIMT में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किए गए थे, A1 क्वालिटी के प्रोजेक्ट। बहुत सारे टीचर्स हमारे पास आए हैं, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर। सभी ने हमारा एक्शन बहुत अच्छा माना है। हमारा जो प्रोटोटाइप मॉडल है, इनोवेशन है, वो बेसिकली उन लोगों के लिए बना है जो मेंटल हेल्थ इशू से मतलब फेस कर रहे हैं, जिनको जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स ये सब। और बेसिकली ये तब ह्यूमन के साथ में रहेगा जब ह्यूमन के पास कोई और नहीं रहेगा बात शेयर करने वाला। Students have got a very big responsibility globally for the climate change. We all know what is climate change, what is energy, environment, climate change, which is happening across the globe. Those who have shown their talent and proven that they are true students and true upcoming scientists by the model, the products they have presented here. I in advance congratulate all the students for this achievement. I would like to congratulate all the winners, all the students and the bright young minds for their hard work, for their dedication. The first prize for
Kisan Inter College, Bhatta, Parsol for the project title Material Filtering Machine. Prize goes to MC Gopi Chand School for the group dance. मेरा नाम चिराग है। मेरा नाम वंश। आप लोग माय नेम इज प्रशांत। ऑक्सफोर्ड मैं ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल। ओके, तो अपने मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने क्या बनाया है? मैम फिजिक्स का वर्किंग मॉडल है मैम। इसमें हमने बनाया है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम। इसमें क्या है मैम कि जैसे आज की डेट में क्या हो रहा है, लाइट्स होती हैं, अगर कोई गलती से ऑफ करना भूल गया उन्हें सुबह के टाइम, तो वो जलती रहती कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत वेस्ट हो रही है। हमने इसमें क्या किया है, आज नॉर्मल सोलर पैनल तो यूज़ हो रहे हैं जगहों पे, लेकिन हमने इसमें अपना एक एडिशन किया है। छोटा प्रोटोटाइप इसका हमने बनाया है कि इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक ये LDR सेंसर है, ये क्या डिटेक्ट कर लेगा डार्कनेस को, जिससे क्या करेगा ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा ये मैम क्या कहते हैं स्ट्रीट लाइट्स को, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बचेगी। और हमने इसका एक छोटा एग्जांपल बनाया, जैसे सेंसर है, जैसे ही मैम यहाँ डार्कनेस हुई जैसी लाइट हुई तो मैम धीरे धीरे, और ये लाइट पर भी डिपेंड करता है कि जितनी लाइट है धीरे धीरे लाइट आ रही है तो मैम ऑफ होता रहता है धीरे धीरे। जैसे धीरे धीरे शाम हो रही है, रात हो रही है, तो धीरे धीरे इसकी लाइट जलती रहती है धीरे धीरे। माई सेल्फ सोचे, आई एम फ्रॉम किसान इंटर कॉलेज पारसोल। फर्स्ट मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इस कॉलेज के मैनेजमेंट को, जिन्होंने हमें ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ आने का मौका दिया। हमने एक मटेरियल फिल्ट्रेटिंग मशीन बनाई थी क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ़ होती थी, जो गेहूँ होता था उसे साफ़ करने के लिए, दालें होती थी उन्हें साफ़ करने के लिए। जो हमने मटेरियल फिल्ट्रेटिंग मशीन बनाई थी वो आपका जो भी आपका मटेरियल है उसे साफ़ कर देती है, बिना आपका उसमें श्रम भी कम लगता है और आपकी टाइम की बचत होती है। जो हमारी मटेरियल फिल्ट्रेटिंग मशीन थी उसका मेन उद्देश्य ये था कि वो लोगों के श्रम और उनके टाइम को दोनों को बचाती है। इधर आकर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारे मॉडल्स थे जो मेनली मतलब बहुत अच्छे थे, जो आगे चल के फ्यूचर में काम देंगे। मेरा नाम वंश है, मैं किसान इंटर कॉलेज पारसोल से हूँ और हमने फर्स्ट प्राइज़ जीता है। हमारे प्रोजेक्ट का नाम था विलेज कन्वर्ट इनटू स्मार्ट विलेज। सर हमने लैपटॉप जीता है फर्स्ट प्राइज़ पे, और सर बहुत अच्छा महसूस हुआ है कि एक ऐसे छोटे गांव से हम आके इतने बड़े कॉलेज में सर जीता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर हमें तो अच्छा लगा है IIMT। सर हम तो यही सोच रहे हैं कि आगे भी इसी कॉलेज से करें अपना करियर भी। IMT में जो कार्यक्रम था इवोल्यूशन 2022 काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया और एक मुझे उम्मीद है कि इसमें से कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी निकलेंगे जो ऊपर लेवल पे काफ़ी स्केल हो सकते हैं। और इसमें मैंने देखा कि काफ़ी पार्टिसिपेशन कुछ स्कूल्स का भी था और हर स्ट्रीम के B.Ed से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर के सारे स्ट्रीम के लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी सराहनीय रहा इनका एफर्ट। और कॉलेज से भी मेरी यही रिक्वेस्ट थी कि इनको और थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए कि ये थोड़ा और आगे बढ़ें। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने ड्रोन पे काम किया, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए और काफ़ी अच्छा रहा मेरा अनुभव। कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। वही मैं आजकल कह रहा था, आजकल के ज़माने में आप किसी कॉलेज में स्कूल में जाएंगे तो वर्टिकली ग्रोथ रहता है। ये हॉरिजॉन्टली इतना बड़ा 19-20 एकड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को अच्छे से करना चाहिए। और इट इज़ अ nicely maintained building. I think professors are also quite good. So I think I'm quite impressed with the infrastructure of the college. They have demonstrated something which is unique. They have demonstrated something on waste. They have demonstrated something on drone-led agriculture, precision farming. ये सारे नए आइडियाज़ हैं जो कि आने वाले टाइम में बड़े होंगे। ये आइडियाज़ प्रोडक्ट और सर्विस का शेप लेंगे, लोगों के ज़िंदगी में खुशहाली लाएंगे और बच्चों का भी भविष्य उज्जवल होगा। कॉलेज में आके मुझे ऐसा लगा जैसे पहले जैसा ही यंगस्टर के बीच में आ गया हूँ। इट इज़ ए वेरी गुड फीलिंग। I found that we are returning to the college life after such a long time. So it is a very fantastic and happy moment. ये मेरा सौभाग्य है कि आज IIMT ने मुझे जो एक्सपो इनोवेशन 2022 एक बड़ा ग्रैंड स्केल पर बच्चों के यंग माइंड्स के इनोवेशन को एग्जिबिट करने के लिए, उनकी जिज्ञासा को और आगे बढ़ाने के लिए, उनको और इस विषय में
अग्रसर करने के लिए एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा और एक अनूठा प्रयास किया है। मैं IIMT की पूरी टीम को, अग्रवाल साहब को, प्रोफेसर अतुल राय को, डॉक्टर बख्शी को, सभी और जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनको अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। IIMT कॉलेज में आई हैव सीन इनोवेशन फेस्ट और आई हैव बीन कॉल्ड फॉर द इनोवेशन फंक्शन टुडे एंड आई एम वेरी मच ब्लेस्ड टू बी हियर बिकॉज जो मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी मतलब आई हैव नेवर सीन इन रिसेंट टाइम। बहुत अच्छा बच्चों ने मतलब प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स थे, वेरियस फील्ड से थे, टेक्नोलॉजी भी था, वेस्ट प्रोडक्ट से भी उन्होंने प्रोडक्ट्स अच्छे बनाए हुए थे, टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा यूज़ किया हुआ था और बेस्ट पार्ट था कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज़ था। तो जो हमारा इनोवेशन मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है, तो उसके लिए इसी तरह की इनिशिएटिव की ज़रूरत है ताकि बच्चों में एक नया करने की भावना जागृत हो और उससे एक कहीं ना कहीं हमारा जो अटल इनोवेशन मिशन है वो एक नई ऊंचाई तक पहुंच पाए। मैं IIMT की मैनेजमेंट और यहाँ के स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये अवसर बच्चों को प्रदान किया है। इस एग्जीबिशन में पूरे जनपद से लगभग 52 कॉलेज प्रतिभाग कर रहे थे। हमारे विद्यालय के 3 मॉडल छात्रों ने 3 मॉडल प्रस्तुत किए और तीनों मॉडल उत्कृष्ट स्तर के थे जो भविष्य में काम आने वाले हैं। तो बच्चों ने इसमें फर्स्ट प्राइज़ जीता है। मैं पुनः इस विद्यालय की, इस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर मेरा नाम शिवम है, मैं तिलप्ता गांव से हूँ, भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज तिलप्ता से हूँ और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सेव वाटर कि पानी को किस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और पानी को किस तरीके के उसके मतलब उसके लाभ मतलब पानी को यूज़ कैसे किया जा सकता है, तो उस बेस पर हम एक प्रोजेक्ट बना कर लाए हैं। जैसे कि इसमें जैसे बारिश जब पड़ती है तो कुछ घर ऐसे होते हैं उनकी छत पर जो पानी भर जाता है उस पानी को हम इकट्ठा करके तो उस पानी को वेस्ट में ना करके यूज़ में कैसे किया जा सकता है। वो है कि जब बारिश पड़ी तो वो छतों पे पानी भरा, उसको पैक करके उस पानी पाइपलाइन द्वारा एक टैप में इकट्ठा किया और उस पाइपलाइन द्वारा इकट्ठा करके उस टैप में भी एक पाइप लगाया जिस कारण बारिश का पानी वैसे तो पीने के योग्य भी माना जाता है लेकिन फ़िल्टर करके भी योग्य पी सकते हैं। उसकी वजह से जो पानी है उसको सिंचाई के रूप में भी उपलब्ध किया जा सकता है। आपको IIMT में आके कैसा लगा और जो आप प्रोजेक्ट बनाए हैं इसको सही प्लेटफॉर्म IIMT ने दे पाया है? जी सर, IIMT वाले बच्चे और कॉलेज टीचर्स और मतलब बहुत सारे टीचर्स हमारे पास आए हैं। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर, सभी ने हमारा एक्सप्लेन बहुत अच्छा माना है। My name is Shruti Shukla and I am from Sainthood Convent School, Dadri. This model is about hydroponics. This is the method of growing plants in soil-less medium and in just 10% of water that is used in traditional farming. मैं आपको IIMT में आके कैसा लग रहा है? It's a pleasure being here. मतलब all the arrangements are really nice. मेरा नाम प्रतिभा शर्मा है, मैं KMA इंटर कॉलेज रिठौरी से गौतम बुद्ध नगर से आई हूँ। बच्चों को एक्साइटमेंट भी बहुत था कि बच्चे प्रोजेक्ट बनाएं और अपना पेश करें, प्रेजेंटेशन दें और सभी बच्चे देखें और भी स्कूल के वाले देखें, हम लोग भी देखें। सर आपका क्या कहना है IIMT के बारे में? देखो, मेरा नाम नेत्रपाल सिंह, मैं वाइस प्रिंसिपल किसान इंटर कॉलेज से और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये कहता हूँ आप बार इवेंट कराते रहें तो हम भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिले, एक्स्ट्रा में जो जानकारी मिले। से हमने अभी प्रोजेक्ट बनवाए बच्चों से, सेव अर्थ बनवाया है और सेव एनर्जी बनवाया है और सेव गर्ल बनवाया है, गर्ल्स के लिए जो भ्रूण हत्या होती है उसके लिए बनवाया हमने। तो ये एक जागरूकता है कि बच्चों के अंदर भी, क्योंकि लड़कियों को बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए, तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ यहाँ पर आके और बहुत अच्छी व्यवस्था रही आपकी, उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। आप कहाँ से आए हैं? इंटर कॉलेज सुरजावली ब्लेंसर से आए हैं हम। अपने मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपका मॉडल किस चीज़ को लेके है? हमारा मॉडल मानव कल्याण के लिए, तीनों मॉडल मानव कल्याण के लिए बनाए। ये सोलर वैक्यूम क्लीनर है,
ये इलेक्ट्रिस्टिक है और ये स्विमिंग होम है। जैसे कि मैं बता दूं, मतलब ये मैंने सोलर वैक्यूम क्लीनर बनाया है। मतलब जैसे अब तक जितने भी वैक्यूम क्लीनर में ये प्रॉब्लम है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी आप तब यूज़ कर पाते हैं, लेकिन हमने सोलर का उपयोग करके आप इसे जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम बिजली की बचत कर पा रहे हैं और उससे बिजली के जो हमारे मतलब बिल आता है हम बिल की बचत कर पा रहे हैं। और जैसे हम इसे सोलर पैनल से द्वारा इसे चार्ज करके अब दिन में रात में जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो चलते थे उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि जहाँ तक आपकी वायर आप वहीं तक यूज़ कर पाते थे, लेकिन हमें सोलर के द्वारा आप इसे जहाँ तक चाहें जैसे छत पे, सीढ़ियों पे, ग्राउंड में कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और से मैम इसे आपके कोई भी काम है वो रुकेगा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होती थी कि जब आएगी तभी यूज़ कर पाएंगे, तो इसमें मैम टाइम की बचत है आपकी। और जैसे जैसे ठंड के मौसम में धूप नहीं निकल पाती है तो हम इसमें चार्जिंग का ऑप्शन भी रखा है, आप इसे चार्ज करके भी यूज कर सकते हैं। मतलब आपका काम किसी भी कंडीशन में रुकेगा नहीं। आपका नाम क्या है और आप किस स्कूल से आए हैं? जी मेरा नाम पंकज झा है और मैं सर्वोदय विद्या मंदिर सेक्टर 45 नोएडा से आया हूँ, उस स्कूल से आया हूँ मैं। अब अपने मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जी मेरे मॉडल का नाम मतलब जो कंपनी है उसका नाम है विनफित प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बेसिकली एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इसका दिखाया गया है इसमें कि ये उस विनफित का हेड ऑफिस है और साइड में उसका स्टोर है। इसके स्टोर में सारे के सारे जितने भी इसके प्रोडक्ट्स हैं वो रखना चाहता था मैं, लेकिन रख नहीं पाया। उसके अगर देखा जाए तो विनफित के 150 से प्लस प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 प्रोडक्ट रखे हैं क्योंकि जगह के इशू के कारण। और ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग है और उसके आगे 4 एम्प्लॉय खड़े हैं। आम भाषा में से बोला जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस कंपनी के, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बिजनेस का होता है उसको मैनेज करते हैं। एक तरीके से मैनेजमेंट है, ये मैनेज करते हैं बिजनेस को। और मैं भी उस कंपनी का एक पार्ट हूँ, मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विनफित कंपनी का, मैं एक नेटवर्कर हूँ। आपका नाम क्या है और आप किस स्कूल से आए हैं? मेरा नाम यमन है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदनपुर खादर RK से आया हूँ। ओके, तो अपने मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने क्या बनाया है? मैंने बनाया है जी रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये आजकल मॉडर्न जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमारी गाड़ी का व्हील चलता है तो हम उसमें ब्रेक मारते हैं, जब हम उसमें ब्रेक लगाते हैं तो हम चाहते हैं हम जब ब्रेक लगाते हैं उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारी बैटरी वापस चार्ज होगी बाय ब्रेकिंग। आपको मैं करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि हमारी गाड़ी का व्हील चल रहा है, हम जैसे इसमें ब्रेकिंग मारेंगे आपको इसमें मल्टीमीटर में रीडिंग दिख जाएगी। अभी देखिए 2 की है, अब देखिए 2 या 3 की, अब देखिए देखिए 7 की आ जा रही है, 6 की आ जा रही है, 5 की आ जा रही है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। मैम अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम बताइए। माय नेम इज श्रुति शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम सेंटहुड कॉन्वेंट स्कूल दादरी। मैं अपने दिस मॉडल इज अबाउट हाइड्रोपोनिक्स. This is the method of growing plants in soil-less medium and in just 10% of water that is used in traditional farming. मैं आपको IMT में आके कैसा लग रहा है? It's a pleasure being here. मतलब all the arrangements are really nice. मेरा नाम है यतेंद्र मलिक. I am PGT Geography in Oxford Green Public School, Greater Noida. Today we are here to show you the India 3D model, which has been gone for the river interlinkage program, which is a futuristic program in which we are going to connect north flowing river to the South Indian river so that the irrigation problem in the South India can be removed by using this water. अपना अपने कॉलेज का नाम बताइए। माय नेम इज़ वंश चौधरी, माय कॉलेज नेम इज़ किसान इंटर कॉलेज पारसोल। आपने क्या मॉडल बनाया? आपने मॉडल को एक्सप्लेन करिए। इस मॉडल का नाम है विलेज कन्वर्ट इनटू स्मार्ट विलेज। यहाँ पे हमने क्या किया, आजकल आपने देखा होगा कि वो आते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद हमें चार्ज करना पड़ता है। तो हमने ऐसे रूट्स बनाए हैं जिन पे कि वो अपने आप चार्ज होगी। अब कैसे? ये जैसे हमने वायरिंग बिछाई है, यहाँ पे हमने जैसे वायरिंग बिछाई है तो वो जब उससे अलग, जैसे आपने देखा मोबाइल आते हैं आजकल नए, उनमें क्या होता है कि वायरलेस चार्जिंग आती है। तो हम ये करेंगे, अभी हमने मॉडल के लिए यहाँ पे वायर्स का यूज़ किया। उसमें क्या होता है, एक कोड होता है और एक इसमें वो लग जाएगा, सेंसर लग जाएगा। सेंसर यहाँ पे लगेगा, कोड रोड में लगेगा। तो उससे क्या है ना, हमारा टाइम बचेगा, फ्यूल और मेन चीज़ एयर पोल्यूशन। अब इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? विंड मिल, और इनसे इनको एनर्जी मिलेगी। अब बात आती है कि कितनी एक बार में वो कर सकते हैं, ये जगह जगह तो वो नहीं करे जा सकते, एक बार में कितनी वो कर सकते हैं, एनर्जी वो कर सकते हैं, क्योंकि एक व्हीकल तो चलेगा नहीं, बहुत सारे व्हीकल चलने हैं इस पे। तो हम 1-1 किलोमीटर की रेंज पे ऐसे सोलर पैनल्स और लगाएंगे, जिससे कि हमारी लाइफ थोड़ी ईजी होगी। ये जो मॉडल है ये गांव की औरतों को देखते हुए, और जो ठेके पे श्रमिक जो होते हैं वो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में, उन्हें मतलब अपना श्रम भी बहुत लगाना पड़ता है और उनका जो टाइम है वो भी काफ़ी वेस्ट होता है। तो मैम उसी श्रम और उनका समय बचाने के लिए हमने ये मशीन, इस एक मशीन का मॉडल तैयार किया है। मैं जो इसका नेट है, आप चाहें आपके पास जो भी मटेरियल है आप उसको इसका नेट चेंज करके
अच्छा अच्छे से फिल्ट्रेट कर सकते हैं मैम। जब ये पुली है इसकी, जब मैम ये ऐसे रोलिंग करती है, घूमती है, तो मैम इसकी सहायता से ये आगे पीछे मूव करता है और जो हमारा मटेरियल है, जो भी सैंड वगैरह है, वो आराम से फिल्ट्रेट होके साफ हो जाता है। माई कॉलेज नेम इज़ किसान इंटर कॉलेज। आपने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करिए। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम पर्यावरण के ऊपर बता रहे हैं। देखो मैम, जैसे बढ़ती जनसंख्या, जैसे फैक्ट्रीज, कारखाने, ये सब चीज़ बना रहे हैं, इनसे निकलने वाले धुएं, मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें मिलकर हमारे पर्यावरण में हम ये सभी गैसें पर्यावरण में मिलकर हमारे इन्वायरमेंट को बहुत दूषित कर रही हैं। और ये जो केमिकल्स निकल रहे हैं फैक्ट्री से, ये हमारे जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसमें जलीय जीव रहने वाले हैं वो मर रहे हैं और जलीय जीवों की इनकी बहुत संख्या कम होती जा रही है। और ये व्हीकल्स, इनसे निकलने वाले धुएं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हमें इलेक्ट्रिसिटी कार्स का यूज़ करना चाहिए। हेलो, आपका नाम क्या है? आप किस स्कूल से? आप अपने मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम सुमित्रा है और हम श्याम सिंह स्मारक इंटर कॉलेज से। हमारा जो मॉडल है वो हिंदी पे रस के ऊपर है। जैसा कि हम रस के बारे में मोस्टली लोग जानते हैं, बट एक बहुत कम लोग जानते होंगे कि रस के दाता कौन है। तो ये भरत मुनि जी है, ये रस के दाता है। इनका जन्म 400 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने रस का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। आधुनिक रस इमोजी हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हमने हर रस को जो है इमोजीज के द्वारा डिफाइन किया है। तो ये हम आपको अपना मॉडल दिखाएंगे। मेरा नाम चिराग है। मेरा नाम वंश। माय नेम इज प्रशांत। ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल। तो अपने मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपने क्या बनाया है? मैम फिज़िक्स का वर्किंग मॉडल है मैम। इसमें हमने बनाया है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम। इसमें क्या है मैम कि जैसे आज की डेट में क्या हो रहा है, लाइट्स होती हैं, अगर कोई गलती से ऑफ़ करना भूल गया उन्हें सुबह के टाइम, तो वो जलती रहती कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत वेस्ट हो रही है। हमने इसमें क्या किया है, आज नॉर्मल सोलर पैनल तो यूज़ हो रहे हैं जगहों पे, लेकिन हमने इसमें अपना एक एडिशन किया है। ये छोटा प्रोटोटाइप है इसका, हमने बनाया है कि इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक ये LDR सेंसर है, ये क्या डिटेक्ट कर लेगा डार्कनेस को, जिससे क्या करेगा ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा ये मैम क्या कहते हैं स्ट्रीट लाइट्स को, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बचेगी। और हमने इसका एक छोटा एग्जांपल बनाया, जैसे सेंसर है, जैसे ही मैम यहाँ डार्कनेस हुई जल गया, जैसी लाइट हुई तो मैम धीरे धीरे, और ये लाइट पर भी डिपेंड करता है कि जितनी लाइट है धीरे धीरे लाइट आ रही है तो मैम ये ऑफ होता रहता है धीरे धीरे। जैसे धीरे धीरे शाम हो रही है, रात हो रही है, तो धीरे धीरे इसकी लाइट जलती रहती है धीरे धीरे। ये हमारा प्रोजेक्ट मेनली। ओके, ग्रेट। I am Utpal Rai from the IMT College of Engineering and IT Department. अपने मॉडल को एक्सप्लेन करिए। This is actually the ozonizer, and which main purpose is the air filtration. It's first of all there is one suction pump which will suck the air, and after that there is 3 plates which have a 3000 volt DC currents which break down the carbon dioxide into carbon and oxygen. And the oxygen will after that circuit will be there in the ozone form, which will break down into the oxygen and O2 and O. Ozone is actually called the killer gas, but its quantity is very less. That's why it's very useful here. In fact, suppose we can think that there is some person having a COVID, but we all guys are not wearing the masks. Then that O will be kill that COVID virus and all the bacteria and virus present in the air, and with that pure oxygen will go, and for that you can smell that this machine working, and the fishy smell will come as it shows that it's a pure oxygen. तो शुक्ला फ्रॉम MT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आपने आज क्या बनाया, अपने मॉडल को एक्सप्लेन करिए। ये स्मार्ट डस्टबिन है, बेसिकली ये वर्क करता है अल्ट्रासोनिक सेंसर की यूज़ पे, और इसमें एक मॉइस्चर सेंसर प्रेजेंट है। अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ होता है कि इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी आएगी तो उसको डिटेक्ट करके इसके फ्लैप्स ओपन होते हैं। फ्लैप्स ओपन हुए हम इसमें गार्बेज डालेंगे, और जो दूसरा अल्ट्रासोनिक सेंसर इसमें लगा हुआ है वो लेवल को रिप्रेजेंट करता है कि किस लेवल तक इसमें अभी गार्बेज प्रेजेंट है। लेवल जैसे 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 है क्रिटिकल लेवल, जब डस्टबिन फुल हो गई तो इसकी जो फ्लिप है वो सीज हो जाएगी, मतलब उसके बाद ना फ्लैप ओपन होगी ना इसमें गार्बेज डालेंगे, जिससे जो गार्बेज की मिसयूज मतलब ओवरफ्लो वगैरह होती है, इन्फेक्शंस वगैरह होता है, वो तब थोड़ा बचेगा उससे। और इसमें मॉइस्चर सेंसर प्रेजेंट है जो कि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर अगर डस्टबिन में है तो उसको बताता है, और ये सब हमको डिस्प्ले पर रिप्रेजेंट होकर मिलता है। आउटपुट हमको सब डिस्प्ले से मिलती है। सर अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम बताइए। Myself Avdesh Kumar. I am working as an assistant professor in IMT College of Polytechnic. We have 2 engines. One is
Innova engines are CRDI based. CRDI, it means common rail direct fuel injection system. It means आप कह सकते हैं कि जो हमारा फ्यूल का जो डायरेक्टली हम सिलेंडर में इंटर करते हैं, और ये हमारा जो बहुत अदर इंजन है, ये हमारा कोरोला का इंजन है, टोयोटा कंपनी का, यानी कि कोरोला का इंजन है, जो ये हमारे EFI बेस्ड है। EFI बेस्ड है, इसमें इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। एडवांटेज इसका ये है कि जो हमारा एक्चुअली जो ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सडन ब्रेकिंग, यानी कि अचानक से अगर कोई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सडन वो उसमें स्टॉपेज नहीं होता है। और ये हमारी ट्रांसमिशन सिस्टम है एक्चुअली। तो ये हमारा एक्चुअली जो हमारा इंजन का मेन फंक्शन होता है, जो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इट मीन्स ये क्लच है, क्लच का इट मीन्स द सिस्टम एंगेज एंड डिसएंगेज ऑफ द पावर सिस्टम थ्रू द ड्राइव व्हील्स, ठीक है। और ये हमारे एक्चुअली ये हमारा ये इंजन्स हमारे उसके हैं, टोयोटा के हैं। इसमें हम साफ्ट को यूज़ करते हैं। साफ्ट जनरली जो हमारा इसमें साफ्ट का मेन पर्पज़ होता है कि हमारा पावर के अगर उसमें पावर हमें वन साफ्ट टू अनदर साफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। देन इसमें हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, और इसके बाद दिया 4 सिलेंडर इंजन। सिलेंडर्स के अंतर्गत हमारा जो 4 स्ट्रोक्स होते हैं, 4 स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, और जो हमारा लास्ट स्ट्रोक है 4th स्ट्रोक है एग्जॉस्ट। फर्स्ट स्ट्रोक में सक्शन के केस में क्या करते हैं हम, उसमें इनलेट जो वॉल्व होती है वो ओपन होती है और आउटलेट वॉल्व क्लोज होती है। इन केस ऑफ इनलेट वॉल्व ओपन, देन पिस्टन मूव फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। दैट केस पिस्टन मूव other strokes we have go to compression stroke. In this case piston move from bottom dead center to top dead center। तो उस केस में हमारा ये जो पिस्टन है जनरली हम जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन वो कितने उसका टेम्परेचर जनरली 1500 के अराउंड रहता है। देन हमारा जो 3rd स्ट्रोक है एक्सपेंशन स्ट्रोक में हम क्या करते हैं कि उसमें हम पिस्टन का जो हमारी पावर मिलती है, इसको हम मेनली पावर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। हाय सर, अपने कॉलेज का नाम बताइए और अपने मॉडल को एक्सप्लेन करिए। My name is Abhinav. I am from BSc CS. So we have created a job portal actually. It's Notion J for jobs. Our idea is for the nourishing and creating jobs from the new ideas basically. So we have created this job portal. This is Notion J. Here you can visit our page. From there you can create a resume for free. It's completely free for the job seekers. There is nothing to pay by the job seekers, but we are targeting the clients like HCL, Infosys, and the big brands, big names into the IT industry, and we are charging them to just put their job listings on our websites, and it works on the AI algorithm, so it will just show all the personalized results to the job seekers to easily find them a good job. And if you are not too good at the job role that is listed by the company, so you can just enroll into our study programs that is also launched on our websites. So it's completely a combination of Coursera, Naukri, Indeed, LinkedIn. We have completed everything combined together, but there is a special thing that makes our project very special, that is 100% background verification. All the jobs only posted on the portal are 100% genuine, that we verify personally. थैंक यू सर। सर अपना एक्सपीरियंस बताइए इस एक्सपो में। Okay, so being in IMT's expo has been a great honor for me because I am a student of IMT itself, but I am seeing it from last 3 years. They are conducting this great kind of expo, and that is very great. I love it. आपका नाम क्या और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है एंड आई एम EC डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो आपने क्या मॉडल बनाया है? देखो हमारा ये लो वोल्टेज टेबल फैन है। ये अदर कन्वेंशनल फैन जितने भी हैं वो 60 वाट पे ऑपरेट होते हैं, हमारा 15 वाट पे ऑपरेट हो रहा है। अदर जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो 45% लेस है।
हमारी वर्किंग एफिशिएंसी 95% मोर है, हमारा 95% मोर एफिशिएंसी पे वर्क करता है। उनका जो रोटेशन पर मिनट आरपीएम है वो 450 है विद लोड के साथ, हमारा आरपीएम 650 है विद लोड के साथ, और विदाउट लोड अगर हम इसको वर्क कराते हैं आरपीएम तो ये 6000 आरपीएम देता है, 6000 आरपीएम पे वर्क करेगा। अदर कंपनी है जैसे हेवेल्स है, फिलिप्स है, ये सारे जो अपने सर्किट है इंपोर्ट कराते हैं और सिर्फ सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका सर्किट भी हम लोगों ने खुद डिज़ाइन किया है। अगर कोई भी सर्किट में इश्यू आता है या कोई कंपोनेंट ख़राब होता है तो हम पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। अदर कंपनी क्या करती है कि पूरा सर्किट रिप्लेस करती हैं, जिसकी वजह से रिपेयरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और जो दूसरी कंपनी है वो इसमें इंडक्शन मोटर यूज़ करती है, जबकि हमने BLDC मोटर यूज़ किया जो ब्रशलेस डायरेक्ट मोटर है। इसी वजह से हमारी जो पावर कंजप्शन है और जो प्राइस है उसमें डिक्रीजनेस आई है। सो ओवरऑल आपका प्रोडक्ट सबसे अलग है। और अभी तक तो हम लोगों ने इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाया है ताकि सबसे अलग हो और हमको पेटेंट राइट्स भी इजीली से मिल जाए। तो आप अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय प्रोजेक्ट। जो हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे आप जूम करके देख पा रही है, वो वेब 3.0 प्लस सोशल मीडिया का कॉम्बिनेशन है, जिसका हमने नेम किया है सोशोपीडिया 3.0। सोशोपीडिया 3.0 का हमने स्लोगन रखा है बिलीव इन यूनिटी। जैसे कि आज के टाइम में हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, FB यूज़ करते हैं, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वो बस टाइम वेस्टिंग के लिए होता है, अप्रॉक्स जस्ट लाइक होता है एंटरटेनमेंट के लिए होता है। वही को हमने मेजोरिटी में रख के फैक्टर में हमने दोनों चीज़ इंक्लूड करना चाहा। हमारी जो टोटल ऑडियंस है वो बच्चों से लेके 60 एज तक है। जैसे कि आप बिलो अगर अंडर 18 है तो आप जो दो प्लेटफॉर्म देख पा रही है, दो कॉलम में, फर्स्ट में यूज़र नेम, फ्रेंड लिस्ट, ये सब में कॉमन होता है। इसके बाद पोस्ट हो गई, पोस्ट सेक्शन भी कॉमन है, ये आधा है क्योंकि स्क्रॉल बार में नीचे दिखेगा। ओके, नाउ वी आर कमिंग इन द थर्ड पॉइंट। यहाँ पे हमने थीम बार रखा है, थीम बार दिखाना, थीम बार रखा है। थीम बार में आपके पास बहुत सारे थीम है, मैक्स 100+ थीम है, जिसमें जैसे जिसे अट्रैक्टिव लगे वो उस पर रह सके और यूज़र बेस पे ऐसा, ठीक है। थीम बार, थीम ये ब्लैक थीम है। उसके बाद ये है, अब चेंजेस होता है सोशल मीडिया का आपने देख लिया। इसके बाद आता है क्रिप्टो पे। क्रिप्टो पे हमने देख रखा है 18 to 60 वाले जो आदमी है वो एंटरटेनमेंट के साथ कुछ अर्न भी कर सकते हैं, तो उसका हमने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म में अरेंज कर रखा। डेली अलर्ट में आपको नोटिफिकेशन मिलेगी क्या कि मार्केट की कंडीशन है, डेली अलर्ट आपको मिलेगा। उसके बाद पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस हैं जिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड समथिंग, और उसके लिए आपको बाहर जाना भी नहीं है। देन हमने इसमें ही आपका इंक्लूड कर रखा है पोर्टफोलियो, वहीं आप शो कर सकते हैं आपका क्या डेली का स्टेट्स है, सारे कुछ। फिर उसके बाद हमने, जब आप ट्रेडिंग वेडिंग कुछ भी कीजिएगा तो सारा का सारा जो है वो INR में नहीं होता, इंडियन करेंसी में, उसे चेंज करके हमें USDT में समथिंग अदर करेंसी करना पड़ता है, तो उसके लिए हम दूसरे वेब पे तो जाने नहीं देंगे, तो उसके भी हमने इंक्लूड करके करेंसी कन्वर्टर लगाया। अगर आपको पूरे वेब में कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो हमने उसके लिए चैट बोट इंक्लूड किया है विथ AI टेक्नोलॉजी। आपका नाम क्या और आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम सूरज कुमार पांडे है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, 4th ईयर के। मेरा नाम कुमार गौरव है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, 4th ईयर से। ओके, तो अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। हमारा मॉडल है गैस मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, और इसमें हम दो मेजर चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। पहला है एक जो हमारा गैस लीकेज करेगा, ठीक है, तो गैस लीक होने के बाद हमारा एक यहाँ पे बज़र लगा है, बज़र बजना स्टार्ट होगा और साथ में ही एक हमारा ये ऐप है, इस पर ये सेम डाटा जाएगा और वहाँ पे शो करना स्टार्ट करेगा कि गैस में लीकेज है, आप आकर के इसे ठीक करो। इसका मेन पर्पस ये है क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं गैस से रिलेटेड, तो एक हम ये सॉल्व करना चाहते थे, और दूसरा कि अब हमारा ये सिलेंडर है, इसके अंदर किसी को पता नहीं होता है ना कि कब कितना गैस बचा हुआ है, ठीक है, और कब ये ख़त्म हो जाए। और ख़ासकर हम सारे स्टूडेंट को खासकर ये काफ़ी प्रॉब्लम होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि कब गैस ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे LED लगा के रखी है, इस पर रियल टाइम में ये बताते रहता है कि हमारे सिलेंडर में कितना गैस बाकी है, ठीक है, और सेम डाटा हमारे सॉफ्टवेयर पे जाता है। और इसके साथ हमने एक इसका क्रिटिकल वॉल्यूम करके रखा है, उसका ये पर्पस था कि अगर ये 300 ग्राम से अगर कम होता है, ठीक है, तो हमारे पास एक फ़ोन पे अलर्ट जाएगा कि अब आपका 300 ग्राम बचा हुआ है और आप अब ऑर्डर करो, कुछ दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। और ये हमारा यही पर्पस था ना कि अब अचानक ये ख़त्म हो गया, अब हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो उसी दिन हम लोगों ने सबने तीनों मिलकर के हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाते हैं। My name is Piyush Raj and I am from IMT College of Engineering, CS branch, and we have the model the Supreme's Eye, and हमारा ये जो मॉडल है वो Supreme's Eye नेम इसलिए दिया गया है because you know Supreme means the superior one, the one which is at the top, and Eye is for because it's keeping a surveillance over everything, every people,
बेस्ड ऑन देयर वर्किंग। लाइक अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारा कॉलेज, तो हमारे जो यहाँ पर सबसे जो सुपीरियर होंगे, जो लाइक अपने वहाँ बैठ के सब पे सुपरविज़न रखना चाहते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ पे नज़र रख सकते हैं कि लाइक वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस जगह पे हैं। एंड अगर हम इसको सिक्योरिटी लेवल पे देखें, गवर्नमेंट लेवल पे, तो हम इसे क्राइम वगैरह में भी यूज़ करते हैं, सच एज किडनैपिंग और मर्डर केस और क्रिमिनल डिटेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो मॉडल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले मॉड्यूल में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको, लाइक अगर किसी पर्सन को, या फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल है जो काफ़ी दिन से नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक इमेज उठाएंगे और वो सिस्टम में डालेंगे। वो सिस्टम फिर उस क्रिमिनल को पहचानने लगेगी कि ये लाइक दिस फेस इज़ द पर्टिकुलर पर्सन, लेट दैट नेम बी एक्स। सेकेंड मॉड्यूल हम लोग ये कर रहे हैं कि लाइक अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की, तो उसके पास होल पूरे सिटी के कैमरास का एक्सेस होगा उसके पास। तो व्हाट आवर मॉडल सेकेंड मॉड्यूल विल डू इज़ कि उन सारे कैमरा से इंटरेक्ट कर पाएगा एंड फुटेज कलेक्ट कर पाएगा और उसको फ्रेम वाइज में डिवाइड कर पाएगा एंड फ्रेम वाइज डिटेक्शन सिस्टम वर्क करेगा। थर्ड मॉड्यूल हमारा क्या करेगा, फर्स्ट मॉड्यूल और सेकंड मॉड्यूल को कोलैबोरेट करेगा, लाइक ज्वाइनिंग देम, कि जो हमने इमेज ट्रेन किया और जो हमारा सीसीटीवी कैमरास में इमेजेस आ रहे हैं, पर्सन्स आ रहे हैं, उन दोनों को एक दूसरे से टैली कर पाएगा एंड जोड़ के ये पहचान पाएगा कि लाइक जो हमने ट्रेन करने के लिए दिया था वो वही है। नाउ इसका आउटपुट ये होगा हमारे पास कि जिस पर्सन का इमेज हमने दिया है वो इस वक्त लाइक अभी लाइव मोमेंट पे किस लोकेशन पे है, या अगर लाइव नहीं दिख रहा है किसी कैमरे में तो लास्ट किस जगह दिखा था और कब दिखा था, ये डिटेल हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड इजीली उस पर्सन को ट्रैक कर सकते हैं। अमन राज, डिपार्टमेंट AIDS। हमारे मॉडल का नाम है ड्राइवर बडी और इसमें हमारे 2 फीचर्स है, एक व्हीकल सिक्योरिटी सिस्टम है और दूसरा है हमारा अलार्म। जो रात में अगर कोई ट्रैवल करता है और उसे नींद आती है तो इसकी वजह से एक्सीडेंट्स होती है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इंडिया में, तो उसके लिए हमने ये सिस्टम बनाया जो आपकी रियल टाइम इमेज लेगा आई की, और अगर आपकी आंखें 5 सेकंड से ज़्यादा बंद होंगी तो फिर ये अलार्म एक बजाएगा और आपको गाइड करेगा कि साइड में पार्क करो और फिर एक पावर नैप ले लो। सेकंड है हमारा व्हीकल सिक्योरिटी सिस्टम, जो आपके 5 यूज़र्स होंगे कार के, मतलब आप ओनर हो गई और फिर 3-4 आपके फैमिली मेम्बर्स जो डेली कार यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा कोई तीसरा पर्सन आकर कार में बैठता है तो उसका फेस मैच करेगा। अगर वो मैच नहीं होगा तो फिर ओनर के पास एक मैसेज जाएगा, अगर वो अलाउ करता है तभी आप कार चला सकते हैं, नहीं तो कार नहीं चलेगी, इंजन्स वगैरह सारे शट डाउन हो जाएंगे। मेरा नाम गौरव सिन्हा है और हम सिविल डिपार्टमेंट से हैं, 3rd ईयर। तो अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए, ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हमारा 2 मॉडल है, एक है फ्लाई एश ब्रिक और एक है हमारा डेकोरेटिव मॉडल्स। डेकोरेटिव मॉडल्स में हमारा क्या है कि जितने भी हमारे वेस्ट बॉटल्स वगैरह, जितने भी सॉलिड वेस्ट है, उसका यूज़ के हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे हमारा एक इसका कंपनी भी सेटअप है। और फिर दूसरा हमारा ये है फ्लाई एश ब्रिक, ये जो है हमारा ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आता है। जितने भी हाई राइज बिल्डिंग है, जितने भी जैसे एज़ कम्पेयर टू हमारा ये रेड ब्रिक जो हमारा पिछले चल रहा था, बट उसे हम रिप्लेस कर रहे हैं फ्लाई एश ब्रिक से। और फिर ये ब्लॉक है, ये इसका जो कंपैरिजन हम करते हैं उससे, तो फिर इसका वेट और कॉस्ट दोनों उस ब्रिक से कम आता है। नाम मेरा प्रशांत है और डिपार्टमेंट है अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। अपने मॉडल के बारे में बताइए जरा। जी, मेरा जो मॉडल है, मेरी टीम का जो मॉडल है वो है लाइफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो लाइट रेज के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है, जैसे हम लोग वाईफाई का यूज़ करते हैं, वाईफाई में क्या होता है वेव्स के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन लाइफाई में क्या होता है लाइट रेज की वजह से डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें हमने, और ये टेक्नोलॉजी है, इसका जो इन्वेंट किया गया था, इसको इसलिए किया गया था ताकि इंटरनेट हमें मैक्सिमम स्पीड में मिले। और इसका एक टेस्ट भी हो चुका है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो लाइट के जो स्पीड जा रही है लाइट के थ्रू, उसकी स्पीड है 100 GB पर सेकंड की स्पीड जा रही है। तो हमने बस वैसा ही एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया जिसके अंदर हमने फ़ोन का जो म्यूजिक सिग्नल है उसको LED के थ्रू ट्रांसमिट किया है और सोलर पैनल का यूज़ किया है एक रिसीवर की तरह। और जो सोलर पैनल आप देख रहे हैं ये LED के थ्रू गाना बज रहा है और फिर वो सोलर पैनल के थ्रू स्पीकर में जा रहा है। तो इसका नाम लाइफाई है? जी, लाइट फिडिलिटी। जैसे वाईफाई होता है वायरलेस फिडिलिटी, लाइट फिडिलिटी मतलब लाइट रेज के थ्रू सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो रहा है। ये हमारा एक प्रकार से फायर फाइटर रोबोट है, लाइक कि ये मूवेबल है, हम लोग जहाँ भी जाएंगे, जैसे कि ये एक प्रकार से मशीन है, अगर इसके 1 मीटर के रेडियस में कहीं पे भी आग लगता है तो ये ऑटोमेटिक जाके उसको वो बंद कर सकता है, लाइक कि उसमें पानी डाल सकता है। अभी फ़िलहाल हमने पानी का इसमें डाला है, अगर इन फ्यूचर अगर हम इसको मॉडिफाई करना चाहें तो इसकी जगह पे हम नाइट्रोजन गैस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने फ्लेम सेंसर यूज़ किया है इसमें, लाइक कि फ्लेम सेंसर जो क्या करता है वो आग वगैरह जो रहता है वो सारा वो डिटेक्ट करेगा और ये कंट्रोलर के पास पहुंचाएगा। और ये कंट्रोलर जो है इसमें हमने प्रोग्रामिंग
के रखी है और फिर वो उस पर पानी डालेगा। ये सबमर्सिबल है, वो हम उस पर पानी डाल के उसको बंद करेगा। बस यही है उसका प्रोग्राम। में हमने लुआ बेस्ड स्क्रिप्ट हमने यूज़ करी है जो कि एम्बेडेड सी लैंग्वेज यूज़ की है और ये हमारे मोटर मतलब सर्वो मोटर को बताएगा, डायरेक्शन देगा कि कहाँ पर आग लगी और सर्वो मोटर हमारे पंप को बताएगा कि कहाँ पर मतलब पानी डालना है और तब मतलब वो पानी डाल के वो आग बुझ जाएगी हमें। मेरा नाम आदित्य ओझा है, मैं बीटेक आईटी डिपार्टमेंट का हूँ। तो अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। प्रोजेक्ट है ये आईटी बेस्ड स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक है। ये बेसिकली इट इज़ अ इनोवेटिव स्टिक प्रपोज फॉर विजुअली डिसेबल्ड पीपल फॉर देयर प्रॉपर नेविगेशन। Its range is 80 centimeter. It can sense 80 centimeter in all directions. We use Arduino Nano, which is miniature of Arduino Uno. In it work at brain of this system, and we can also say that it work as the motherboard of this system. And we use ultrasonic sensor. There are 3 ultrasonic sensor in it, and its range is 80 centimeter in both the 3 directions. And it is rechargeable system. And we also install vibrators in it. If any obstacle in this side of this system, then it's vibrate in this side, and if any obstacle in this side, it vibrate in this side, and any obstacle in front of it, both the motors are vibrate. And this is our prototype. We are working on it. अभी इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन बाकी हैं, जैसे कि हम कहते हैं इसमें जैसे ऑब्स्टेकल लेफ्ट में है कि राइट में है कि फ्रंट पे है, वो डिटेक्ट कर सकें कि ऑब्स्टेकल किस टाइप का है। कहते हैं लिविंग बिंग है, नॉन लिविंग बिंग है, छोटा है, बड़ा है। इसकी डेप्थ के लिए हम इसमें सेंसर एक और यूज़ करेंगे, आईआर सेंसर, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगी आगे गड्ढा आ रहा है कि नहीं, मतलब कितनी गहराई है, कैसे है। उस से मेरा नाम खुशी है और ये हमारे मेंबर्स हैं और मैं बीटेक डिपार्टमेंट से हूँ, सीएस। ओके, तो अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। ये जो मॉडल है ये हमने बनाया है स्मार्ट आर्मी बेस कैंप। इस मॉडल में हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर, बजर और सर्वो मोटर यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कोई टैंक है इसको लेके जाते हैं तो ये इसको सेंस करेगा, ठीक है, और फिर ये है ना, ये इसको ब्लॉक कर देगा। एंड व्हेन ये आइडेंटिफाइड अगर ये व्हीकल होगा तो ये हम इसे पास करने देंगे, तो ये गेट जो है ना ये अनब्लॉक हो जाएगी और ये जो है ना व्हीकल ये पास कर जाएगी, ये व्हीकल। यही हमारा मॉडल है। इसको हमने इस पर्पस से बनाया है कि जो मिलिट्री कैंप में जो सेफ एंड सिक्योरिटी पर्पस है, इसके लिए हमने बनाया है इसको। Hi, my name is Riya and I'm from BTech CSE AI. Our project is basically automated hydraulic parking system. Here we have used hydraulic system to elevate the bridges and eliminate the congestion of parking. तो हमने यहाँ पे क्या है कि पार्किंग की जो भी कियोस्क है ना, यहाँ पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है हमने। यहाँ पे लिमिटेड हमने बस एज अ सोर्स वाटर यूज़ किया है, कोई एनर्जी और वेस्टेज नहीं है इसमें, बस वाटर सोर्स हमने यूज़ किया है, तो ये इको फ्रेंडली है। Well, I am Ajay Kumar. I am from B Farm first year. Basically, it is an awareness program to spread in between the peoples to what are the rules to follow and what are the medicines to take. So there are many safety rules in crowded area. We should always we should always wear your mask and to take in distance of the peoples, and always to follow what are the basics rule. You always use sanitizer. Do not hesitate another people with their droplets. And transmission cycle of a coronavirus. Basically, it is a coronavirus. Coronavirus is a nucleoprotein, that is nucleic acid and protein, in which both they have so dual nature, living nature as well as non-living nature. If in the atmosphere they show non-living nature, but basically when we are present in the body, they show living nature. According to WHO, coronavirus refers to a family of viruses that causes respiratory infections. Virus got its name due to these parts. Cranium parts due to the virus got its name. Various antidotes are made, such as Covaxin, which is India's first indigenous vaccines provided by Indian government, collaboration with ICPI, Indian Council of Medical and Research, and NIB. तो आपका नाम क्या है? रोशन पांडे। किस डिपार्टमेंट से? बीजीएमसी फर्स्ट ईयर। तो आपने इतनी सारी फोटोज लगाई हैं, ये सब बीजीएमसी वालों ने क्लिक की हैं? जी, ये सब हमारी टीम ने क्लिक करी है। अपने स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली हमारा स्टॉल है ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी। लाइक जैसे कि जो भी यहाँ पे लोग विजिटर्स आ रहे हैं, हम उनकी ऑन स्पॉट, वो जिस स्पॉट पे कहेंगे उस स्पॉट पे आकर हम उनकी फोटो लेंगे। देन उनको हमने यहाँ पे एंट्रीज के लिए हमने व्हाट्सअप नंबर उनके नोट कर रखे हैं। देन हम उनको व्हाट्सअप पे फोटो सेंड कर देंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिकॉज क्या होता है ना कि ऐसे इवेंट्स में लोग जाते हैं लेकिन फोटो वगैरह नहीं क्लिक कर पाते, या क्लिक करते हैं तो मिलती नहीं है, तो उसके लिए हमने सर्विस देनी शुरू करी है कि फ्री है बिल्कुल। मेरा नाम लवी है और मेरे कॉलेज का नाम है IMT ग्रुप ऑफ कॉलेज। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? BJMC। आपने मॉडल को एक्सप्लेन करिए, आपने क्या बनाया?
मैंने कम्युनिकेशन को लेकर मॉडल बनाया है। इसमें हमने बताया है कि पहले कैसे कम्युनिकेशन होता था और अब कैसे कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। पहले हम कबूतर से हम चिट्ठी भेजते थे, लेटर भेजते थे और हम आग दिखा के भी पहले कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन अब हम कम्युनिकेशन बदल गया है, अब हम डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि टेलीविज़न के माध्यम से करते हैं, लैपटॉप से करते हैं, मोबाइल से करते हैं। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके बीच में बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। जो सेंडर मैसेज भेजता है, जब वो मैसेज भेजता है वो इनकोड होता है, जिसके द्वारा भेजता है वो मीडियम होता है, फिर जब वो डिकोड होकर रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर उसका फीडबैक दे देता है, तब ये पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन को लेकर एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी बनाई है, मल्टी स्टेप फ्लो थ्योरी। इस थ्योरी में उसने बताया कि ओपिनियन लीडर का दोनों के बीच में कितना बड़ा रोल है।